شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں بھائی بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ اس بات پر میرے کانٹیکٹ میں ہیں، رابطے میں ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بار بار اپنے میسج شروع کرنے سے پہلے، پیغام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں تو یہ تو بسم اللہ ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی باسم کا مطلب ہوتا ہے بائی دی نیم آف اللہ، میں الہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو میرا الہ یسوع ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں، لیکن یشوع ہمشیح کے نام میں قوت ہے، جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے روزگاروں کو روزگار کا طریقہ بتایا، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو بھیڑ بکریوں کا طریقہ بتایا، بزنس کرنے والوں کو بزنس کا طریقہ بتایا، جو بڑھئی کا کام کرتے تھے ان کو بڑھئی کا کام کرنا سکھایا، جو کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو بتایا کہ کس طرح سے کھیتی باڑی کرنی ہے، جو تاکستان لگاتے ہیں ان کو بتایا کس طرح تاکستان لگانا ہے، جب شادیاں کرنے والوں کو بتایا کہ کس طرح شادیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کانا گلیل میں کمتی آ گئی، ان کی کمتی کو پورا کر دیا، خوراک کی کمی آ گئی تو تھوڑے کو کس طرح سے بانٹنا سکھایا، کھلانا سکھایا، جو بچ گیا اس کو سنبھالنا سکھایا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یسوع کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس پر ظلم کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو نگلیکٹ کیا، اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا۔ وہ بیابان میں رہتا رہا، جنگلوں میں رہتا رہا۔ آپ جائیں جارڈن میں تو آپ کو مل جائے گی وہ غار جہاں پر یسوع مسیح رہتا رہا، یسوع کی غار۔ آپ جائیں اسرائیل میں، آپ کو وہ مقام کا پتہ چلے گا کہ یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ تو وہ بڑا رحم والا ہے، اس نے رحم کیا۔ یعقوب نے اور یوحنا نے غصے میں آ کر کہا کہ ہاں آگ نازل ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، تو یسوع نے کہا کہ تم کس روح کے ہو؟ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی رحیم ہوں۔ اس طرح سے رحیم جیسے بچے پر رحم کیا جاتا ہے۔ بچہ کبھی، مجھے پتا ہے، میرے پوتے بھی ہیں، میرے نواسے بھی ہیں، اور جب میں کئی دفعہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہوں تو وہ کئی طرح کی ایسی بے ترتیبی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ دوسرا دیکھو ہو یہ کیا کر دیا۔ مجھے پتا ہے وہ بچے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، تو مجھے سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے۔ تو خدا جو ہے وہ تو ہمارا بنانے والا ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا شافی ہے۔ تو وہ نہیں جانتا کہ ہم کس طرح کے ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ طیش میں نہیں آ جاتا۔ اس نے روح القدس ہمیں مددگار دیا ہے جو ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، جو ہمیں عبادت کرنا سکھاتا ہے،
हमें बोलना सिखाता है। रोमियो के खत में लिखा है, रूह हमारे रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के शफायत करता है। शफायत का मतलब तरला मिन्नत नहीं है। शफायत का मतलब होता है आपको कवर करना। जिस तरह से मसीह खुदावंद ने कहा, उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। लिबास का मतलब होता है कमियां ढांक लेना, ढांप लेना, कवर कर लेना। फिर हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है, रूहुल कुद्दस हमारा वकील है। तो ये सारी बातें समझते हुए हमें किस हद तक रूहुल कुद्दस की जरूरत है और किन को रूहुल कुद्दस मिलता है। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। अब जो हमारे चाइना प्रोडक्शन पादरी हैं, रेडीमेड पादरी हैं, जो चर्च खेल रहे हैं, जो खुदा का नाम, मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा, बेफायदा ले रहे हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है, शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, जबकि वो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता। जब तक आप यीशु के हो नहीं गए, आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, आप पछताए नहीं, आप मुड़े नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप मुकद्दसों की महफिल में नहीं आ गए, आप अशायरबानी में शामिल नहीं होते, आप दुआ में शामिल नहीं होते, आपके रवैये में फर्क नहीं है, धोखेबाजी, हर तरह की वो बातें जो आम दुनिया के लोगों में हैं उसी तरह से पाई जाती हैं, तो फिर 3-3 घंटे ढोलकियां, तबले, बाजे, तालियां, खंजरियां, चिमटे बजाने से कभी रूहुल कुद्दस नहीं आएगा। ए रूहे पाक उतर आ, ए रूहे पाक उतर आ, ए रूहे पाक कहां से उतर आए। मसीह ने कहा कि रुके रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। रूहुल कुद्दस उतर चुका है, अब रुकना है कि वो तुम्हें लिबास दे दे। तुम्हारा चर्च में भी वही लिबास हो, तुम्हारा चर्च के बाहर भी वही लिबास हो, तुम्हारा तन्हाई में भी वही लिबास हो, तुम्हारा भीड़ में भी वही लिबास हो। अगर तुम भीड़ में हो तो वहां पर भी खुदा के बंदे नजर आओ, तुम तन्हा हो तो फिर भी खुदा के बंदे नजर आओ। तन्हाई में शैतानी और जो हजूम है उसमें पारसाई। वहां पर लोग आपको पीर मानते हैं। जब आप तन्हा हैं, जहां कोई आपको देखता नहीं, वहां पर आप दुनिया के लुच्चे तरीन आदमी हैं। मुझे कईयों ने बताया कि जी फलां बंदा है जो जब स्टेज पे चढ़ता है तो वो किसी को टच तो किसी को कस पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन जब वो तन्हाई में है तो वो बंदा शराब भी पीता है, वो जिनाकार भी है, वो बदकार भी है, वो लालची भी है, वो कातल भी है, वो लुटेरा भी है, वो फराडिया भी है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने सुन लिया, पर मैं किसी का मुनसिफ नहीं हूं। एक दिन जो मुनसिफ है, जो आदल है, वो उसको कटहरे में लाएगा, उसकी सजा उसे मिलेगी। किस तरह से सजा मिलती है? बच्चे रा रवि का शिकार हो जाते हैं, बीवी बेरा रवि का शिकार हो जाती है, और कई तरह से वो इसी दुनिया में भुगतता है। ये कभी नहीं हो सकता कि करे जिस्म और सजा रूह को, मजे ले ये बॉडी और भुगते रूह। ये कैसे हो सकता है? रूह ने भी करना है, जब होगा उसको रगड़ा लगेगा।
लेकिन इस जिस्म में भी क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जो कोई इस मकदस को यानी इस जिस्म को जिस तरह से इस्तेमाल करेगा, उसी तरह से उसकी अदालत भी होगी। इसलिए डरा डरा के लोगों को कलाम ना सुनाएं, डरा डरा के खुदा को हवा बनाकर लोगों के सामने ना पेश करें, डरा डरा के लोगों से पैसे ना बटोरें, दैयकियां ना निकालें, कुर्बानियां ना लें। कभी दोजख की खबरें बताते रहे, भाई तुम गए थे दोजख में। ये ईमान है, ये बातें हैं, ये सुनते हो आप। ये दोजख दार असल इसी दुनिया में है। इस तरह से बयान किया करो। अगर आप रहम करोगे तो मसीह खुदावंद ने कहा तुम पर भी रहम किया जाएगा। जिस पैमाने से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो कुछ तुम इस दुनिया में किसी के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। ये आम बात है। जिस किसी को आप याद करते हो 2 दिन के बाद वो कॉल कर देता है। इतना हाई सैटेलाइट है आपके दिमाग का कि जिसको आप याद करते हो उसके दिमाग में टल्लियां बज जाती हैं। जिसके आप खिलाफ बोलते हो उसके अंदर भी टल्लियां बज जाती हैं। जिसकी आप फेवर में बात करते हो उसके अंदर भी मोहब्बत की पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। जिसको आप नापसंद करते हो दूसरे के अंदर भी नापसंदीदगी का चश्मा जारी हो जाता है। ये मसीह खुदावंद ने जो दुनिया का खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो कहता है राह मैं हूं, जो कहता है जिंदगी मैं हूं, जो कहता है नूर मैं हूं। किसी ने कहा कि मैं नूर हूं, किसी ने कहा मैं जिंदगी हूं, किसी ने कहा मैं माफ करने वाला हूं। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि हमें तो खुद का नहीं पता, तो हम तुम्हें क्या बताएं। बस जिस तरह हम चल रहे हैं तुम भी चलते हो। सुबह नहाया करो, स्नान करो, पाक हो जाओ, तुम्हारी भी खलासी हो जाएगी। हम भी नहा रहे हैं, तुम भी नहाओ। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी की रोटी देता हूं, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता हूं, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं। ऐसा इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरी पैरवी करने वाला अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। ये किसने कहा? ये यीशु नासरी कहता है। वो तुम्हें कवर करता है, वो तुम्हें संभालता है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। हो ये ना करना खुदा नाराज हो जाएगा, ये ना करना खुदा सजा देगा, ये ना करना खुदा वो करेगा। बस खौफ 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 नहीं। खुदा हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। खुदा हमें कमजोरियों से बचाने के लिए मददगार देता है, और वो मददगार है रूहुल कुदस, जिसके अंदर अभी तक कमजोरी बरकरार है। इसका मतलब है कि उसको रूहुल कुदस नहीं मिला। वो भले सुबह से शाम तक ढोलकियां फाड़ दें, बाजे फाड़ दें, तबले फाड़ दें, खंजरियां फाड़ दें, चिमटे तोड़ दें, चर्च को सर पर उठा लें, दमाले डालें, पीटते रहें, जख्मी कर लें अपने आप को, रूहुल कुदस नहीं आएगा। रूहुल कुदस इस तरह नहीं आता। रूहुल कुदस आता है उनके लिए जो उसका इंतजार करते हैं, जो दुनिया से कट चुके हैं, जिन्होंने दरवाजे दुनिया की तरफ से बंद कर लिए हैं, जिनकी खिड़कियां दुनिया की तरफ से बंद हो चुकी हैं, जिनके घरों में टाइम ही नहीं कि वो दुआ करें। कभी टीवी, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी सैरो तफरी, कभी खाना पीना, कभी मेहमान नवाजी।
जब इतनी हलचल होगी जिंदगी में, इतना तूफान होगा जिंदगी में, जैसे समुंदर के अंदर बड़ा तूफान होता है, एक छाल इधर गई, एक छाल उधर से आ गई, एक छाल उधर गई, एक छाल उधर से आ गई, तो वहां पर क्या साकन होगा, कैसे आवाज सुनी जाएगी। तजर्बा करें आप कभी समुंदर पे जाके, ऊंची बोलना पड़ता है क्योंकि बड़ा शोर है वहां पर, पानी का बड़ा शोर है। जब जिंदगी में इतना शोर होगा, अबतरी, बदअमनी, परेशानी, वो आ गया वो मेहमान, वो चला गया मेहमान, आज वो मेहमान आ गया, आज वो मेहमान आ गया, आज उधर जाना है, आज उधर जाना है, तो कब आपको टाइम मिला कि आप संजीदगी में चले जाएं, तन्हाई में चले जाएं और कहें सैमुअल की तरह कि खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। खुदा चाहता है। मूसा को उसने कहा कि आ मैं तेरे साथ बात करूं। मूसा 70 लोगों को साथ लेके चला गया। खुदा ने कहा मैंने कहा था मैंने तेरे साथ बात करनी है, तू ये 70 लोगों को लेके आ गया। उसने उनको उधर खड़ा कर दिया, यशुआ को ले गया। खुदा ने कहा मैंने कहा था तू आ, तू फिर यशुआ को साथ लेके आ गया। अब यशुआ को भी छोड़ना पड़ा, फिर अकेला गया। जब अकेला गया तो फिर बैठा रहा, हर तरफ की खिड़की बंद, हर तरफ से शोर खत्म, हर तरह के दरवाजे बंद, हर तरह का मामलात खत्म, और खुदा ने उसे अपने अहकाम दिए। खुदा ने उसके साथ बातें की। जब आप खुदावंद की कुर्बत में जाएंगे, ये मैं नहीं कहता कि आप बीवी को या बच्चों को या रिश्तेदारों को टाइम ना दें, ये आपकी अवलियत है। खुदा खुश होता है जब आप बीवी को, बच्चों को, हस्बैंड को टाइम देते हैं, क्योंकि खुदा हमारी खानदानों में रहता है। लेकिन जब इन खानदानों के अलावा बाहर के बड़े तमाशे गले में डाले हुए हैं, अपने अपने घरों में जो लोग हैं रहें। खुदावंद का जो टाइम है वो खुदावंद को दें, फैमिली का जो टाइम है वो फैमिली को दें, लेकिन रिश्तेदारों में इतने ना उलझ जाएं। अगर किसी के 5, 7, 10 खानदान रिश्तेदार हैं, उनका तो महीना ऐसे विजिट पे गुजर जाएगा, तो वो तो गए काम से। चलो कभी कोई हुआ शादी ब्याह, कोई गमी खुशी तो ठीक है, वरना आज उसकी सालगिरह, आज उसकी खुशी, आज उसकी बच्चा पास हो गया, आज उसका बच्चा फेल हो गया, आज उसके बच्चे के कान छदवाए गए, तो आज उसके बच्चे की पोनी बांधी गई, आज उसका। भाई तुम इसी काम के लिए दुनिया में आए हो, इसी काम से आपका जीना मरना है? नहीं, आपका खुदा आपको प्यार करता है। जब आप सो जाते हैं वो जागता रहता है, वो आपके खाने को पाक करता है, उससे जहरीला जो मादा है वो खत्म कर देता है। वो आपका चौकीदार बन के आपकी हिफाजत करता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। वो आपसे नाराज नहीं होता, वो आपसे डरता नहीं है, वो आपको प्यार करता है। एक बेअकल, एक अपाहज, एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह वो आपको प्यार करता रहता है। हम इस दुनिया में कामल नहीं है। जैसा हमारा रूहानी कद होना चाहिए नहीं है, अपाहज की हालत है, मफलूज होने की तरह की शक्ल सूरत है। जैसा वो चाहता है, पालूस कहता है मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे अंदर मसीह सूरत पकड़ जाए। रात दिन मुझे तुम्हारे बारे में जनने के से दर्द लगे हैं, मैं दिन रात तुम्हारी फिक्र करता हूं। खुदा के लोग कलीसियाओं के लिए दुआ करते रहते हैं। सैमुअल कहता है खुदा ना करे कि मैं तुम्हारे बारे में दुआ करने से बाज आकर खुदा का गुनहगार ठहरूं। वो बराबर दुआ करते हैं, और अगर शुगल मेले में लगे रहें, और अगर रूहुल कुदस की परवाह ना करें, अगर खुदा के कलाम का लिहाज ना करें, तो फिर कैसे वो हमारे साथ बात करेगा? वो कहता है मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी प्यारी, पहाड़ों की दरारों से बाहर आ, मैं तेरी आवाज